So dear students, here we are going to start our last part of the ecosystem. So in previous lecture we already discussed about the law of thermodynamics. Here again we are going to start the same part. So what is second law of thermodynamics? In second law of thermodynamics it is stated that whenever the system or chain increases or it is shifted from one state to another, their quantity and energy is decreased. Means we are having the normal ecosystem. In normal ecosystem, what's happened? In ecosystem we are going to discuss. In previous we already discussed about the pyramid of the biomass. So here the total number of the producer, that is the grass, it is in the quantity, as we discussed, it is in the quantity of gram per meter cube, so it's a 10,000. So huge amount of grass we are having, that the producer. But when we move from that producer to primary consumer, that is the grasshopper, their quantity, it is only 10% of the grass. Means the quantity of the grasshopper, it is only 10% of the grass. Remaining amount of energy, it is released in the atmosphere. As we already know, the first law of thermodynamics, that energy is neither be created nor be destroyed, but changes from one state to another. Out of that, the 90% energy, it is losses in the atmosphere in the another form, but only 10% it is of is available, or the out of that, the 10% of the next generation is available, that is the grasshopper. So out of the that whatever is the quantity of the grasshopper, out of that it's only 10% of the frogs, that the toads, secondary consumers, are available in the nature. So pyramid is it is like so that, so basic things are in the large quantity and the up next chain, it is in the low quantity, it is only the 10%. So in nature, that whatever the amount of frogs are there, out of that the quantity, only 10% are reptiles or the snakes are in the atmosphere. Only 10%. So what's happened whenever we move from the lower level to another upper level, the energy, it is, or the quantity, it is decreases. Only 10% it is over there. So in pyramid becomes smaller at the top because around the 90% of the energy is lost between each level and only 10% is available in the body of the organism for transfer to the next level. Only otherwise so what's the huge amount of grasshopper is there, but out of that the availability of grass, it is very much more than the grasshopper. So it is again next we are having the slide in which the energy transfer in a food chain. So what the first state, in first law, here we are having the part, here we are in the solar system. It's definitely, it is in a huge quantity. Out of that, some energy it is losses in the atmosphere, but only 10% is energy is consumed by the primary topical level, that is the plants. Only 10% it is consumed. And then out of the first tropical level energy, only 10% of energy it is absorbed or transferred to the next primary consumer, that is the herbivorous plant caterpillar. Remaining 90% of energy it is released or the lost in the atmosphere in another form. Then the quantity of the grasshopper, uh, when we shift it to the next, it is the secondary consumer, carnivorous, that depend on the another animal. So they only shift 10% of energy to the next level, and the 90% of energy it is again the lost in the atmosphere. And when the secondary consumer it is shifted to the tertiary consumer, that is the top carnivorous, only 10% of energy it is shifted from secondary to tertiary and the 90% of energy decreases. In between what's happened, that some things are there, that the detrivorous, they what they do,
they consumes so many things. That is that they consumes uh, plants, they consume the herbivores, they consume in some quantity of in a uh, private secondary consumer, and they also consume the tertiary consumers also. So that detritivores also absorb some amount of it, but their quantity is so large that they release their remaining energy in the atmosphere. So nutrition cycle, it's a natural cycle. We are having the nitrogen, carbon, and the water cycle. Then some of the various nutrition cycle on the earth. It's a natural cycle. So this is the carbon cycle. So what the carbon cycle? Because every living thing it's organic and it is a content of what? The content of carbon. Here we are having what? Atmospheric CO2. It makes the carbon cycle. What here? It's a plane aircraft that release the CO2 in atmosphere. Along with that, the so many things. The volcano, while the volcanic eruption, it also releases the large amount of CO2. But that CO2 it is absorbed by the aquatic life also. Okay, so it absorbed by the aquatic life. Then while respiration by the aquatic life, they also release what? Sorry, that CO2 is absorbed in the water, and that whatever the CO2 it is absorbed in the water, it is used by the organic matter. That is the plant, what we call as the uh, aquatic plant. They absorb for their process. Then the decomposition of the organic matter. Whatever the decomposition takes place in a jungle or anywhere in the on the earth, because the all living things are the organic, and on during their decomposition it releases what? CO2. Then the while the forest fire, whenever the forest fire takes place, they also release the large amount of the CO2. Burning of the fossil fuel, it is by the natural way or the artificial way. It also release the large amount of what? Fossil fuel. Then again, second part, it's a volcanic eruption also. During the volcanic eruption, it released a large amount of CO2. Not only CO2, SO2, NO2 also, but that CO2 is again released in atmosphere through all the living things by their respiration. But there are only two things that CO2 is absorbed by the plant for their respiration, and second it is absorbed by the water. It get absorbed in the water. So the release amount of the CO2 in the atmosphere, it is in a large way, while their consumption in a from the atmosphere, it is in a very low way. It's a carbon cycle. And second is the nitrogen cycle. Actually, we already know that air contain up to 71% of nitrogen already. So the gaseous atmospheric nitrogen store, the air contains so many large. And along with that, the fossil fuel emission we already discussed. While the fossil fuel means when the coal undergoes the process of combustion in the industry, when they use it is a as a part of their fuel, it releases a large amount of nitrogenous compound. So it releases in the atmosphere. Along with that, uh, what's happened? Whenever the precipitation takes place in the atmosphere, when that all that gets collected, and while the lightning, especially in the case of lightning, the large amount of energy is releases, and during that all nitrogen get accumulated, and that nitrogen is into is released along with the rainwater. While rainwater, when it is come in contact with the soil, it get absorbed by the plant. So whenever the nitrates are produced, that nitrates are consumed by the plants, and sometimes the denitrification, natural denitrification takes place. So it release the nitrogen and the nitrous oxide. But when that organic matter come along with the rain, nitrogen compound, it undergoes the process of mineralization and it produces the ammonium. Nitrification takes place. That nitrification produces nitrites. Nitrites again produce nitrates, and nitrates again consumed by the plants. So जब भी हम लोग देखते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश के वक्त एक्चुअली प्लांट की ग्रोथ बहुत से होती है, अच्छी होती है. हम लोग जब भी साल भर उसे पानी देंगे, तो पानी देने के बाद हमारा ये एक्सपीरियंस होता है
तो जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो भी नॉन लिविंग है, वाटर है, लाइटनिंग है, एयर है, या हमने मैन मेड बनाई हुई है, ऑल आर व्हाट, ऑल आर अबायोटिक फैक्टर्स। अब उसके साथ अगर हम लोग देखते हैं तो लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है हमारे इसमें। एन अबायोटिक फैक्टर कैन लिमिट द population size if there is too much or the too little of it, even if there is right amount of others factor। यानी सभी चीज़ों को ये कंट्रोल में रखने का काम, अगर वो कम रहती है तो उसे बढ़ाता है, बढ़ाते अगर बढ़ गए काफ़ी ज़्यादा तो उसको कम करता है। तो इसमें सनलाइट आता है, प्रेसिपिटेशन, सैलिनिटी एंड न्यूट्रिशन इन द सॉइल्स, ये सब चीज़ें हमारी आती है अबायोटिक, और इसका ये लिमिटिंग फैक्टर हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली अबायोटिक फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसा अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट टेम्परेचर, फायर, ये अबायोटिक आता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जंगल जल जाता है, और पूरा जंगल जलने की वजह से हमारा बायोटिक फैक्टर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अबायोटिक फैक्टर, इतना ज्यादा अफेक्ट करता है। सेकेंड पार्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखते तो अर्ली और द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉस्ट कैन किल द प्लांट एंड एंटायर फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉस्ट मीन्स वॉट, हमें पता है ओस के बिंदु आते हैं, स्पेशली ये आता है हमारा ओस ठंडी में, जब भी हमारा ठंड कालना रहता है, विंटर रहता है, तब उस प्लांट के ऊपर ओस के बिंदु आते हैं, जैसे दो बिंदु हम लोग कहते हैं। अगर ये काफ़ी जल्दी भी अगर आती है तो जल्दी आने की वजह से हमारा ये एक्सपीरियंस है कि वो उस प्लांट के ग्रोथ को हैम्पर करता है, और वो पूरी की पूरी तरह से फूड चेन को ख़त्म कर देता है। थर्ड है, अगर आप ये प्लांट को अगर देखते हैं तो इस प्लांट में अगर आप देखेंगे तो प्लांट कभी भी सिमेट्रिकल रहता है, लेकिन जो रेगुलर एयर ब्लो हो रही है उसकी वजह से ये प्लांट पूरी तरह से एक साइड में ही ग्रो हो चुका है, सेकेंड साइड में नहीं है, वो सिमेट्रिकल नहीं है, वन साइडेड है, लेकिन दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द विंड इफेक्ट। क्लासिफिकेशन है, हमारी पूरी इकोसिस्टम में हम लोग देखते हैं तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये दोनों चीजें होती है। हम लोग आर्टिफिशियल को नहीं देखना चाहते हैं, हम लोग नेचुरल को देखेंगे। तो उसमें आते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, एक जमीन के ऊपर और एक पानी में। पानी की अगर देखेंगे तो उसमें फ्रेश वाटर भी रहता है, नदी वगैरह का, तालाब का, अच्छा, और एक मरीन वाटर भी रहता है जिससे समुद्र का खारा पानी रहता है। सो फ्रेश में भी दो पार्ट आते हैं, लेंटिक एंड द लॉटिक, एंड मरीन में भी आता है ओशंस एंड द सी। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है नेचुरल का, इवन इसमें टेरिस्ट्रियल का कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो आप सब चीज़ों को इसे में आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रॉपिकल लेवल्स, द इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इकोसिस्टम आर ऑफन ब्रोकन अप एंड डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द फीडिंग रिलेशनशिप and the position of an organism food chain and the group of organism that occupy the same place in the। यानी ट्रॉपिकल लेवल्स कैसा होता है कि सबसे पहला पार्ट ट्रॉपिकल लेवल्स में हम लोग देखते हैं पिरामिड अगर बनाते तो बेसमेंट में कौन है, यानी जिस जो खुद तैयार होता है उसके ऊपर उसे कंज्यूम करने वाला कौन है, उसे कंज्यूम करने वाला कौन है, उसे कंज्यूम करने वाला कौन है। ये जब भी पूरी हमारी प्रोसेस होती है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल। तो ट्रॉपिकल लेवल्स में सबसे नीचे में जो रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड दीज आर द ऑटोट्रॉफ्स। इसके बारे में थोड़ी हम लोग देखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स के प्रोड्यूसर्स के ऊपर रहता है प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवरस होते हैं, फिर हर्बीवरस को खाने वाले रहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस, और कार्निवोरस को खाने वाले रहते हैं टॉप कार्निवोरस जिसे हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और ये नाम आप चार ख्याल में रखिए। उसमें उसके बाद डिकम्पोजर्स भी है, डिट्रीवर्स भी है एंड द स्कैवेंजर्स भी है। ये जनरल प्रोसेस हमारी चलती है यहाँ पर, स्कैवेंजर्स वगैरह, डिट्रीवर्स एंड डिकम्पोजिशन की। तो एनर्जी फ्लो एंड द मटेरियल साइकिल अगर हम लोग देखें तो इससे नेचर से हमारा चला जाता है और नेचर की एटमॉस्फेयर की चीजें हमारे में आती है। इट्स अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। अगर सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर वाटर है, क्योंकि बारिश हो रही है तो उसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, परकोलेशन के साथ ये वाटर इट इज कंज्यूम बाय द प्लांट। प्लांट कंज्यूम करता है अलोंग विद द सोल्यूबल मिनरल्स न्यूट्रिशन, जमीन में रहने वाले जितने भी मिनरल्स है उसे भी कंज्यूम करता है अलोंग विद द वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, सनलाइट है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, खुद के फूड को प्रोड्यूस करता है, खुद को प्रोड्यूस करता है। वैसे ही ग्रास वगैरह सब प्रोड्यूस होते हैं। अब उसे कंज्यूम कौन करता है, रैबिट, ग्रास को और प्लांट को जो रहता है ट्री के ऊपर, जिसे हम लोग हर्बिवोरस कहते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन कंज्यूम करता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर फॉक्स कंज्यूम करता है। और फॉक्स को कंज्यूम कौन करते हैं, तो लॉयन वगैरह कंज्यूम करते हैं। तो ऊपर से नीचे तक अगर हम लोग देखते हैं या नीचे से ऊपर तक अगर हम लोग जाएंगे
तो ये हमारा मटेरियल साइक्लिंग रहता है। प्रोड्यूसर जिसमें हमारा सेल्फ ऑटोट्रॉप से सेल्फ फीडिंग रहता है और इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहती है और जो यूज़ करते हैं एनर्जी सन वगैरह से और खुद को खुद बनाते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। प्रोड्यूसर्स जिसमें हमारा अल्गी मॉसेस बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं, ये खुद होकर खुद बनते हैं। डिकम्पोजर्स ये किसी भी चीज़ को धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं, वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दे आर अगेन कन्वर्ट देम इनटू दैट फॉर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द सेकेंड साइकिल और द नेचर, वो अपने आप फिर से इस्तेमाल हो जाए। इस प्रकार से बैक्टीरिया एंड द फंजाई उस डेड थिंग को डिकम्पोज कर देते हैं। कंपेयर द डिट्रियस फीडर्स टू द डिकम्पोजर्स। अगर इसमें हम लोग देखते थे कि वुडन लॉग है और वुडन लॉग का हम लोग पाउडर फॉर्म में कैसे कैसे हो सकता है, ये अलग अलग हमारे पास डिट्रियस फीडर्स है, ये पूरी तरह से उसे धीरे धीरे पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं। कंज्यूमर्स में द हेटेरोटॉप जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये खुद तो कुछ बनाते नहीं है, ये दूसरे को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स है। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या करता है, तो सी अर्चिन या कोकोपेड के हम लोग अगर देखेंगे तो ये प्लांट को खाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या रहता है, ये ईट करता है प्राइमरी कंज्यूमर्स को, जैसे वुल्फ है, ईल है, एरिन है। टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या करता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खत्म करता है, जिसमें सी ऑटर और सील है। और क्वाटरनरी कंज्यूमर जो रहता है कि जनरली ऐसा कि जिसे जनरली कोई दूसरा नहीं खा सकता, काफी बड़ा रहता है, जिसमें किलर वेल अगर ये हम लोग कहते हैं, हैमरहेडेड वेल कहेंगे, ब्लू वेल कहेंगे, ये रहती है। लेकिन ये इनका डेथ नेचुरली हो जाता है, तो नेचुरल होने की वजह से डिकम्पोजर इन्हें खा लेते हैं, डिकम्पोजर डेथ बॉडी को, और फिर से दे आर अवेलेबल फॉर द अनदर नेक्स्ट कमिंग साइकिल। तो ये एक रोल ऑफ द कंज्यूमर्स है, दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिकल टू द अनदर एंड डिफरेंट नेम्स उनके ऊपर है। हर्बियोरस अगर प्लांट ईटर है, तो कार्निवोरस मीट ईटर है, दोनों अगर रहते हैं तो ओमनिवोरस हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये प्रोसेस हमने बताई हुई है प्लेटफॉर्म के फॉर्म में, फूड चेन के फॉर्म में। तो सबसे पहला सन है। सन क्या करता है, ये CO2 वगैरह की वजह से जो नॉर्मल प्लांट्स है इनको ग्रो करने के लिए होता है, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। प्लांट्स को कौन खाते हैं, तो प्लांट्स को खाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, यानी जो पानी के ऊपर पानी में रहने वाले छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं, ये प्लांट्स को खा लेते हैं, उनके ऊपर इनका गुजारा होता है, कंज्यूम कर लेता है वो। लेकिन वो छोटे छोटे कीड़ों को कौन खाता है, तो इसमें जू प्लैंक्टन जैसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, इन छोटे छोटे सभी प्लांट्स को खा लेते हैं। तो जो छोटी छोटी फिशेस रहती है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएगी। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स रहता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आता है हमारी फिश, तो ये छोटी छोटी फिशेस को खा लेती है। और टर्शियरी कंज्यूमर्स आता है हमारा टॉर्टोइज या टर्टल्स, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा लेता है। फूड वेब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक छोटे से फाइटोप्लैंक्टन से लेकर ह्यूमन तक ये पूरी कौन किसे कंज्यूम करता है, ये फूड चेन के बारे में। ट्रॉपिकल लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सबसे नीचे में जो रहता है उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे हीट उनकी रिलीज होती है, वो चीज़ें डिकम्पोज होती है। और क्वांटिटी अगर हम लोग देखेंगे तो ओनली 10%, जितना नीचे का लेवल रहता है उसका 10% ही ऊपर का लेवल हमारे लिए अवेलेबल रहता है। पिरामिड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बायोमास की एनर्जी हमने देखी हुई है। बायोमास की एनर्जी में यहाँ पर 10,000 है, फिर 10,000 का 10% ही यानी 1,000 ही हमारा ग्रास हॉपर है। उसके कंपेरेटिव अगर हम लोग देखेंगे तो उसका 100 ही हमारे पास फ्रॉक्स है। और उसके ऊपर अगर हम लोग देखें टर्शियरी कंज्यूमर तो उसका 10 ही हमारे पास स्नेक्स वगैरह इसमें अवेलेबल। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या करता है हमें, ये एनर्जी फ्लो वन डायरेक्शनल कभी भी एक जगह ही एक साइड से रहता है, सन टू हीट होता है, लॉन्गर वेवलेंथ, एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब भी हम लोग मूव होते हैं नेक्स्ट चेन के तरफ, तब क्वांटिटी और एनर्जी ये दोनों चीजें कम होती है, यानी नेक्स्ट लेवल पे जब हम लोग जाएंगे तो 90% ऑफ एनर्जी ये लॉस्ट हो जाती है एंड ओनली 10% ऑफ एनर्जी इट इज अवेलेबल इन द बॉडी ऑफ द नेक्स्ट ट्रांसफर लेवल। फिर ये हमने देखा हुआ है सोलर एनर्जी, जितनी सोलर एनर्जी रहती है उसका ओनली 10% ही कंज्यूम किया जाता है
बाकी सब एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। फिर जितना प्लांट, तो हमारा ये एक्सपीरियंस होता है कि जब भी हम लोग साल भर पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, उनकी ग्रोथ काफ़ी नॉर्मल होती है। लेकिन जब भी बारिश का पानी आता है तो बारिश के पानी में उनकी ग्रोथ एकदम फास्ट हो जाती है, सडन हो जाती है, और ड्रास्टिकली हम लोग उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। सो व्हाट्स द रीज़न? क्योंकि जब भी बारिश का पानी आता है तो उसमें काफ़ी सारा नाइट्रोजन होता है, और यही नाइट्रोजन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। So what's happened? Along with that, we also add some fertilizers in a soil, and that also contain the nitrogenous compound like the urea. यूरिया ये नाइट्रोजन का काफ़ी कंपाउंड है, जिसमें ऑटोमेटिकली ज़मीन में काफ़ी सारा नाइट्रोजन चला जाता है नेचुरल वे से मिलने वाला पानी के साथ भी अलग। सो व्हाट्स हैपन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लीचिंग। यहाँ पर लीचिंग की प्रोसेस होती है। लीचिंग मीन्स व्हाट, कि ये जो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल वे में नाइट्रोजन का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा सॉइल में होता है तो सॉइल की सैलिनिटी चेंज हो जाती है। सैलिनिटी चेंज होना यानी क्या? तो सॉइल में जो भी नाइट्रोजन का कंटेंट है, सॉल्टीनेस है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाता है। और जब भी ये पानी के साथ परकोलेट होने वाली जो भी सॉल्ट्स है, जब भी ये किसी तालाब में, नदी में चला जाता है, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ यूट्रिफिकेशन। सो यूट्रिफिकेशन मीन्स व्हाट, कि ये उस पानी को उस सॉल्ट से, मिनरल से इनरिच कर देता है, जिसमें इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहती है, और वो पानी एकदम बेस्ट रहता है। यानी जब भी ये नेचुरल प्रोसेस होगी तो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने वाला नाइट्रोजन लाइटनिंग प्रोसेस की वजह से ज़मीन में आता है। ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर के साथ प्रोसेस होकर इसका मिनरलाइजेशन हो जाता है। फिर अमोनिया, अमोनिया का नाइट्रेशन नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट्स का नाइट्रेट्स में, और नाइट्राइट्स का फिर से डीनाइट्रिफिकेशन, और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो ये एक साइकिल है कि एटमॉस्फेयर से आने वाली चीज़ ही एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और उसका कुछ पोर्शन ये प्लांट कंज्यूम कर पाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और सैलिनिटी बढ़ने की वजह से जब भी क्षार जिसे हम लोग कहते हैं, सॉल्ट जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ने की वजह से सॉइल्स के साथ ये चले आते हैं हमारे पानी में। और पानी में आने के बाद वो पर्टिकुलर जो पानी रहता है वो काफ़ी रिच बन जाता है। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होती है वाटर साइकिल। देखिए, वाटर साइकिल मीन्स व्हाट, सबसे पहला पार्ट कंडेंसेशन। हमको पता है कि जब भी समुद्र का पानी ये हवा में जाता है धूप की वजह से, तो वो एक गैसियस फॉर्म में जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है पानी, वैसे वैसे वहाँ पर एटमॉस्फेयर काफ़ी कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंस होने के बाद क्या होता है, इट्स अ प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। तो ज़मीन के ऊपर आता है, ज़मीन में यहाँ पर आने के बाद उन पूरे सॉल्ट्स के साथ वो तैयार हो जाता है, मिक्स हो जाता है मिनरल्स के साथ, और फिर वो रन ऑफ हो जाता है पॉन्ड्स में। पॉन्ड्स का पानी खुद होके वेपराइज होगा, तो वेपराइज होने के बाद कहाँ आएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, फिर से कंडेंस होगा, फिर से प्रेसिपिटेशन के साथ पानी में आएगा। along with that it is used by the aquatic life। यहाँ पर जब पानी आता है तो यहाँ पर काफ़ी सारा एयर कंटेंट भी होता है उसके साथ, तो इट इज़ रेस्पिरेशन के लिए भी काम में आता है। along with that actually ये when that water is consumed by the plant, that plant again in the undergoes the process of transpiration में क्या होता है कि जब भी पानी पेड़ पीता है तो उसके पत्तों में जो पानी रहता है वो पानी धूप की वजह से फिर से क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। और इवापोरेट होने की वजह से उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ऑलरेडी ये प्लांट फिर से ये जो पानी रहता है ये फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एटमॉस्फेयर का पानी हमारे पास प्रोसेस होके नदी नालों में आता है। इट इज कंज्यूम बाय द सो मेनी प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ एंड अदर थिंग्स, and it again undergoes a process of transpiration, evaporation, the respiration, and move to the atmosphere। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ये हमारा छोटा सा आखिरी का पोर्शन है, इसे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम यानी क्या होता है। कि डेजर्ट इकोसिस्टम है। डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है, नहीं के बराबर ही होती है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनिमल हम लोगों को मिलते हैं ये रेप्टाइल्स मिलते हैं। और क्योंकि स्पेशली एक कैमल को हम लोग वहाँ का एक्चुअली एक हमें पता है इट्स शिप ऑफ डेजर्ट, ये वहाँ का जहाज है, क्योंकि ये बगैर पानी का काफ़ी दिन रह सकता है, क्योंकि उसका जो स्किन है, स्केल्स है, वैसे उतने रहते हैं। अदरवाइज जो है यहाँ पर स्नेक्स या जो हम लोग लिजार्ड्स कहते हैं, इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। इवन प्लांट में भी यहाँ पर टैक्टस रहते हैं कि जो काफ़ी चौड़े इनकी स्किन्स रहती है, और ये काफ़ी दिनों तक विदाउट वाटर सस्टेन कर पाते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है कि जहाँ पर हवाई या कोस्टा रिका में ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। और यहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो रेन फॉरेस्ट होता है, जो बारिश के पानी की वजह से होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें लिविंग थिंग मिलते हैं। जहाँ पर दुनिया में कहीं नहीं मिलते उतना लिविंग थिंग हमें
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलता है। हमारे यहाँ पर भी है काफ़ी सारा, चिखलदरा है, उसके बाद हमारा नागपुर में भी है, पेंच, चंद्रपुर, ताड़ोपा, ये जितने भी हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ों को देखने के लिए मिलेगा। इट्स अ ग्रास इकोसिस्टम। ग्रास इकोसिस्टम में यहाँ पर बड़े पौधों की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन पूरे के पूरे जो ज़मीन रहती है वो पूरे ग्रास से कवर्ड रहती है। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि इसमें छोटे छोटे एनिमल, प्लांट्स, ये सब रहते हैं और इनका ही पूरा प्रोसेस के साथ एक इसमें जो भी एक्वेटिक लाइफ रहती है, फिश रहती है, टॉर्टोइज रहते हैं, इवन ब्लू व्हेल रहती है, ये सब एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। टॉपिक खत्म होने के बाद फिर से मैं आप लोगों को ये टॉपिक का एक छोटा सा एक पूरा का पूरा रिवीजन दे देता हूँ कि हम लोगों ने ये, हमारे टॉपिक का नाम था इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मीन्स व्हाट? इट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सर्टेन ज्योग्राफिकल लोकेशन। जहाँ पर भी अलग अलग लोकेशन है वहाँ की लिविंग और नॉन लिविंग थिंग ये एक दूसरे के साथ मिक्स होकर बनाते हैं हमारा एक इकोसिस्टम। तो एक्चुअली इकोसिस्टम ये कि दो चीजों से बना रहता है, एक बायोटिक एंड द अबायोटिक। सो व्हाट इज बायोटिक? इट्स ऑल लिविंग थिंग, एंड अबायोटिक इट्स ऑल नॉन लिविंग थिंग। यानी इकोसिस्टम में हमारा पॉन्ड्स आता है, फॉरेस्ट आता है, ग्रासलैंड आता है, जो भी डेजर्ट रहेगा, जो भी कुछ रहेगा, ये सभी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। जो हमारे सराउंडिंग में वो सब इकोसिस्टम में आता है। तो इकोसिस्टम क्या है? इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरेक्शन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लाइव। जहाँ पर वो रहते हैं उनके उनके साथ इंटरेक्शन कैसे होता है और वहाँ पर उनका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो जहाँ पर वो रहते हैं, ये इसके बारे में हम लोग उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर मीन्स व्हाट? कि जहाँ पर इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म एंड द जो एनवायरनमेंट रहता है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमें सबसे पहले बायोटिक और अबायोटिक के बारे में पता रहना जरूरी है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स कि ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, स्पेसीज किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, कम्युनिटी, नीचे एंड द हैबिटेट। ये कुछ चीजें हमें पता रहना काफी जरूरी है। तो कंपेयर द टर्म्स हैबिटेट एंड द नीचे। समटाइम्स पीपल कंफ्यूज दिस टर्म्स, फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन इट। सबसे पहले हमें इसकी फिगर आउट करने पड़ेंगे। नीचे एंड हैबिटेट, हैबिटेट यानी क्या रहता है कि जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है, and that habitat must provide the source of water, food, shelter to the organism। एक सबसे पहला पार्ट ऐसा रहता है कि जो एनिमल को जो एटमॉस्फेयर का एक्चुअली एक रिलेट करता है, जो उसको जो जिसमें वो रह पाता है, वो रहता है उसका हैबिटेट। अगर आप देखेंगे तो पोलर बियर हमारे यहाँ नहीं रह सकता, हम डेजर्ट में नहीं रह सकते। डेजर्ट वाला एनिमल जैसे कोई स्पेशली जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है, वहाँ नहीं रह सकता जहाँ पर काफ़ी सारी बर्फ होती है। तो कोई भी जहाँ पर भी जो एनिमल सस्टेन कर पाता है और वहाँ पर जिसे उसका सोर्स होता है, वाटर है, फूड है, शेल्टर है, उसे हम लोग हैबिटेट कहते हैं। नीचे किसे कहते हैं? द रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज द लार्जली ट्रू विद द ट्रॉपिकल लेवल। और जैसे नीचे मीन्स व्हाट? कि वो रोल क्या है उस ऑर्गेनिज्म का। जैसे प्लांट है तो प्लांट को हम लोग उसका रोल क्या है कि वो अपना फूड प्रोड्यूस करता है फूड चेन के लिए, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनके लिए। टाइगर क्या करता है कि टाइगर ये टॉप पर रहता है, ये टर्शियरी कंज्यूमर्स है कार्निवोरस का। तो ये क्या करता है, हर्बिवोरस की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल में रखता है, क्योंकि टाइगर इनको खाता है, एनिमल प्लांट को हर्बिवोरस खाते हैं और हर्बिवोरस को प्लांट, हर्बिवोरस को कार्निवोरस। अबायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, सबसे पहले अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर को किसे कहते हैं? लिविंग बायोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग थिंग को हम लोग कहते हैं बायोटिक। अबायोटिक मीन नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर कि जो इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनिज्म और सिस्टम को, टेम्परेचर, सैलिनिटी और पीएच। ये इतना इंपॉर्टेंट रखिए। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ कि बायोटिक क्या है? जो वॉट एवर अदर लिविंग इट्स अ बायोटिक। सो रैबिट इट्स अ बायोटिक। कैक्टा है, एक प्लांट रहता है, बायोटिक। डे लाइट आवर नहीं है, ये अबायोटिक है। प्रेसिपिटेशन अबायोटिक है। मॉस, यस, ये ग्रो करता है, बायोटिक। सॉइल कंपोजिशन इट्स अबायोटिक एंड बैक्टीरिया इट्स अ बायोटिक। तो ये कभी भी आपको ये चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। अब बायोटिक फैक्टर में आप देखो, सभी के सभी लिविंग थिंग्स है, ये सभी हमारा बायोटिक फैक्टर आता है। प्लांट रहे, फूड रहे, बैक्टीरिया रहे, एनिमल रहे, जो भी कुछ रहता है लिविंग थिंग में, वो सभी का सभी हमारा बायोटिक में आता है। अबायोटिक में एनिमल है,
सॉरी वाटर है, लाइटनिंग है, या जो भी चीज़ें हम लोग नॉन, तो जितना भी हमारे पास सनलाइट है उसका 10% ही नेक्स्ट में कंज्यूम होता है, बाकी 90% और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। फिर जितना प्लांट्स रहता है उसका 10% ही कंज्यूम किया जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स में, बाकी 90% एटमॉस्फेयर में रहता है। फिर जितना प्राइमरी कंज्यूमर्स है उसका 10% ही कंज्यूम होता है सेकेंडरी कंज्यूमर में, एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी सब एनर्जी एटमॉस्फेयर रिलीज होती है। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स का 10% ही टर्शियरी कंज्यूमर्स में आता है, टॉप कार्निवोरस में, और 90% ऑफ एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। यानी जब भी नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो 10% ही आपको एनर्जी ट्रांसफर होगी, बाकी नहीं। तीन साइकिल्स है हमारे पास काफी अच्छी, जो नेचर में अपने आप होती है, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल। तो सबसे पहला पार्ट कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल अगर हम लोग देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन साइकिल सबसे ज्यादा होता है, CO2 का परसेंटेज, जिसमें एयरक्राफ्ट की वजह से आ जाता है, वॉल्केनोज की वजह से आ जाता है, एक जब कोई रेस्पिरेट करता है तब CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, एक्सेप्ट प्लांट। वोल्केनोज CO2 को रिलीज करते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोयला जब जलता है तभी भी एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज होता है, फॉरेस्ट फायर्स होता है तो CO2 रिलीज होता है, डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी जब भी होता है तो फॉरेस्ट, एक्चुअली ये पूरा का पूरा हमारा एटमॉस्फेयर में ये सब चीजें रिलीज होती है। ठीक है, तो सेम पार्ट यहाँ पर ऑयल गैस वगैरह ये जब भी एक्चुअली वॉल्केनोज वगैरह से निकलती है तो एटमॉस्फेयर में ये सब चीज़ें हमारी रिलीज हो जाती है। लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने वाली CO2 को दो ही चीज़ें, एक है हमारा सलाइन वाटर, वाटर जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड सेकेंड इट इज नथिंग बट द प्लांट CO2 को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर की चीज़ें प्लांट वगैरह में एब्जॉर्ब हो जाता है CO2, उनकी तरफ से फिर से बाहर निकल जाता है। नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि वो जब भी लाइटनिंग की प्रोसेस होती है तो लाइटनिंग के प्रोसेस के साथ वो नाइट्रोजन हमारा ज़मीन में आ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिक्स होकर मिनरलाइजेशन हो जाता है, जो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्राइट्स में नाइट्राइट, नाइट्रेट में, एंड देयर अगेन डीनाइट्रिफिकेशन अगर हो गया तो नाइट्रोजन और NO2 तैयार होकर फिर से वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अदरवाइज दे आर कंज्यूम बाय द एनिमल और द प्लांट, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके फिर से अपनी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। हम लोग एक्सटर्नली फर्टिलाइजर में यूरिया के साथ साथ नाइट्रोजनस कंपाउंड डाल देते हैं, वैसे इसकी वजह से सैलिनिटी काफ़ी अच्छी बढ़ती है सॉइल की, और सॉइल की सैलिनिटी बढ़ने की वजह से वो काफ़ी एनरिच हो जाता है, और वही जब पानी परकोलेट हो जाता है कहीं दूसरी जगह तो वहाँ पर यूट्रिफिकेशन होता है, इसका मतलब कि वो पानी भी एकदम मिनरल से काफ़ी एनरिच रहता है। सेकेंड वाटर, थर्ड वाटर साइकिल, कि यहाँ पर क्या होता है कि जो एयर में एटमॉस्फेयर में रहने वाला पानी है ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेशन के साथ तालाब में आ जाता है। यहीं पर एक्चुअली इट इज कंज्यूम बाय द एनिमल, एनिमल अपना रेस्पिरेशन से ये जब भी करते हैं तो इनकी वजह से ये पानी रिलीज हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट ये पानी खुद की इवापोरेट हो जाता है, खुद की इवापोरेट हो गया तो एटमॉस्फेयर में चला गया। इफ दैट वाटर कंज्यूम बाय द प्लांट, और प्लांट में जब भी ये पानी कंज्यूम करता है तो ये ट्रांसपीरेशन एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज हो जाता है। इकोसिस्टम है डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड, हमें जो देखी हुई है एक्वेटिक, ऐसी कुछ एग्जांपल है। तो थैंक यू बॉयज।